Post-harvest horticulture refers to the processes and practices that occur after the harvest of fruits, vegetables, flowers, and other horticultural crops. The main goal of post-harvest horticulture is to preserve the quality, extend the shelf life, and ensure that these crops reach the consumer in optimal condition. It encompasses everything from the moment the crop is harvested until it is consumed, sold, or processed. Post-harvest horticulture plays a crucial role in reducing losses, maintaining the nutritional value and aesthetic quality of produce, and enhancing its marketability. This field involves a combination of scientific knowledge, practical techniques, and technologies that help minimize spoilage, enhance the appearance of produce, and improve overall food security and economic returns for growers. Post-harvest horticulture involves several key areas aimed at preserving the quality and extending the shelf life of harvested crops. The first step is harvesting, where the right timing and gentle handling are crucial to avoid damage and spoilage. Once harvested, the produce is cleaned to remove contaminants and sorted based on size, quality, and appearance to meet market standards. After sorting, the crops are cooled and stored in cold storage or controlled atmosphere facilities to slow down spoilage. Packaging plays a significant role in protecting the produce during transportation, often using techniques like modified atmosphere packaging, MAP, to enhance freshness. During transportation, refrigerated systems ensure produce remains at the correct temperature to prevent deterioration. For some fruits, ripening control using ethylene gas helps ensure they reach the market at the ideal stage. Excess produce is often preserved and processed through methods such as canning, freezing, or drying, ensuring off-season availability. Quality control through inspection and grading ensures only the best products are sold. Lastly, waste management involves recycling or converting spoiled produce into compost, animal feed, or bioenergy, minimizing losses. Together, these practices work to reduce post-harvest losses, maintain quality, and ensure that produce reaches consumers in optimal condition. तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक प्री हार्वेस्ट फैक्टर होते हैं और एक होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर। ये दोनों फैक्टर्स जो है ना, हम पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर जो है, दे एनकम्पसेस द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन द हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। हैंडलिंग क्या है, प्रोसेसिंग भी आ जाती है, प्रिजर्वेशन भी आ जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट इज वाइटल फॉर मिनिमाइजिंग लॉसेस एंड इंश्योरिंग क्वालिटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने ऐसा काम करना है जिससे हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको हम कम से कम कर सके। तो ये बहुत ही अभी मुझे लगता है आप लोगों के लिए बड़ा इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होगा, बड़ा आसान होगा, लेकिन हमने इसको डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वजह क्या है कि व्हाई वी स्टडी पोस्ट हार्वेस्ट। अब्दुल रहमान, व्हाई वी स्टडी पोस्ट हार्वेस्ट? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फूड सिक्योरिटी को हमारे पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ना 40% हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लॉस हो जाती है। ठीक है, अब वो लॉस क्यों होती है? हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ इस लॉस को ही बचा लें तो हम बहुत ज्यादा $1 बिलियन इंडस्ट्री को दे सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी बनाई हुई है जो कि इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो आप नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिंग। उसमें फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। व्हाट इज द फूड सिक्योरिटी? सही है यार, वो पीछे से बंद करके आना दरवाजा, आवाज बड़ी आ रही है। ओके, दोबारा बताना। नहीं, फूड सिक्योर, फूड सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होगा? अवेलेबिलिटी होना, कि हर बंदे के लिए फूड का अवेलेबल होना, ना सिर्फ फूड बल्कि अच्छी फूड। अगर हम कहेंगे कि एक मुल्क फूड सिक्योर है, अगर हम कहेंगे कि ये मुल्क फूड के अंदर फूड सिक्योरिटी है,
फूड सिक्योरिटी का मतलब है, सिक्योरिटी का मतलब है कि वो सारी, अगर हम कहें दहशतगर्द से सिक्योरिटी, तो हम कहेंगे कि तमाम फैक्टर्स को, वो जो तमाम फैक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं कि उन तमाम फैक्टर्स को हम लॉस नहीं होने देते। वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो नेचर ने हमारी फूड के अंदर रखे हैं, हमारी वेजिटेबल्स के अंदर रखे हैं, हमारे लीफी वेजिटेबल्स के अंदर रखे हैं, हमारी इवन कुछ फ्लावर भी हम खाते हैं। फ्लावर कौन कौन सी चीज खाते हैं हम? फ्लावर, कैबेज का फ्लावर है, ब्रोकली फ्लावर है, ठीक है। इट मीन्स दैट वो तमाम चीजें जिसको हम एज ए उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान नेचर ने जो विटामिन विटामिन उसके अंदर रखे हैं, वो जब एंड यूजर तक जाए वो बिल्कुल वो प्रिजर्व रहे। उसकी एक एग्जांपल मैं बताता हूं, ग्लूकोसिनोलेट। ग्लूकोसिनोलेट ये एक कंपाउंड है जो कि ब्रोकली के अंदर होता है। क्या होता है? ब्रोकली के अंदर होता है ग्लूकोसिनोलेट। अच्छा, अब ये ग्लूकोसिनोलेट है ना, जब हम ब्रोकली खाते हैं ना, तो हमें एंटी कैंसरस कंपाउंड है। वो क्या है? एंटी, हमें बॉडी को कैंसर नहीं होने देता। अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि जब हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर नहीं होता। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ब्रोकली के ऊपर कट लगता है ना, या इंसेक्ट का अटैक होता है, तो वो जो ग्लूकोसिनोलेट है ना, एक मायरोसिनेज एक एंजाइम होता है। क्या होता है? मायरोसिनेज। वो ब्रोकली के अंदर प्रोड्यूस होता है और वो ग्लूकोसिनोलेट को सल्फोरेफनेन में कन्वर्ट कर देता है। सल्फोरेफनेन, समझ आ रही? अब ये जो सल्फोरेफनेन है ना, ये है इंसेक्ट रिपेलेंट। क्या है? व्हाट डज इट मीन? इंसेक्ट रिपेलेंट, रिपेल कर देता है। जब ज्यादा ब्रोकली है, ब्रोकली के ऊपर इंसेक्ट ने बाइट किया, अब वही ग्लूकोसिनोलेट वो सल्फोरेफनेन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक नहीं आएगा। इंसेक्ट क्या हो जाएगा? भाग जाएगा उससे। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन, क्या होता है कि जब वही इंसेक्ट, तो इंसेक्ट अटैक कैसे करता है? बाइट करता है। क्या करता है? बाइट करता है। लेकिन जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना, वाउंड होता है ना, वो वाउंड इंड्यूसिबल्स है। वो क्या है? उनके अंदर वो मायरोसिनेज जो वो एंजाइम है, जो वो जीन है जो वाउंड इंड्यूसिबल है, वो क्या करते हैं कि ग्लूकोसिनोलेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फोरेफनेन में, सल्फोरेफनेन। अच्छा, अब ये जो है ना, ये इंसेक्ट रिपेलेंट है। ये क्या है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी कट द ब्रोकली, तब भी उसको ऐसे लगता है कि कहीं इंसेक्ट का अटैक हो गया। हार्वेस्टिंग जब हमने करनी है तो क्या करना है? कट करना है। जब वो कट करना है तो भी तब भी ब्रोकली को ऐसा ही लगता है कि मेरे ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो गया, इथाइलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, और सल्फोरेफनेन जो है वो जो ग्लूकोसिनोलेट जो कि एक एंटी कैंसरस कंपाउंड है, जिसको डाइजेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाके होना चाहिए था, वो बाहर ही हो जाता है। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है कि वो हार्वेस्टिंग के फौरन बाद, अगर हम यही कहते हैं कि ब्रोकली ना हमें फ्रेश करनी चाहिए, कहा जाता है कि 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर हार्वेस्ट करें ना, तो ये कंपाउंड खत्म हो जाता है। अगर आपके पास बच्चे, ये ब्रोकली पहुंचती है 3 दिन बाद घर पे, तो न्यूट्रिशियस नहीं है, नो न्यूट्रिशन, ठीक है, आपकी वो खुराक आपकी, आप उसको, वो आपके लिए वो फूड सिक्योर नहीं है, वो फूड सिक्योर नहीं है, वो फूड सिक्योरिटी में नहीं आएगी। अब हमारा काम क्या है? बीइंग अ पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट, हमारा काम है कि इस कंपाउंड को खत्म ना होने देना। कोई ऐसी हॉर्टिकल्चरल पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आनी है कि फ्रूट को पता ना लगे, फ्लावर को पता ना लगे कि मेरे ऊपर कट लगा है, या मेरे ऊपर
कोई प्रॉब्लम आया है। समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरह के जो हमें कई प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और कैसे हम इन तमाम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम इस मायरोसिनेज जो एंजाइम है ना, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि इसको कैसे इनएक्टिव किया जाए। मायरोसिनेज क्या करता है, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। जब फ्रूट के ऊपर कट लगे तो मायरोसिनेज ना प्रोड्यूस हो। अगर ये नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? वो कन्वर्ट नहीं होगा और वो ब्रोकली के अंदर ही रहेगा, और उसकी कहीं से भी बाइट करे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम मायरोसिनेज बनने ही ना दे। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान होगा, तो पौधा जल्दी अब हम ऐसा करते हैं कि इंसेक्ट के दौरान मायरोसिनेज एक्टिव हो, रूट्स के अंदर, शूट के अंदर, लीफ के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, लेकिन फ्लावर के अंदर ना हो। लेकिन फ्लावर के अंदर ना हो, तो वो, या फ्लावर के अंदर भी हो, लेकिन लेकिन जब पोस्ट हार्वेस्ट हम कट लगाए ना, तब हम कोई उसको ट्रीटमेंट दें तो वो मायरोसिनियस को जाकर खत्म कर दे। या कुछ ऐसा किया जाए, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मैं आपको एक पूरा, मेरी एक मेरा एक स्टूडेंट है शकील, उसने इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसको आइडिया ही मैंने दिया था। ठीक है, तो हमने एक्चुअली, वो मेरे पास आया था, सर मेरे पास ब्रोकलीज है, हम क्या किया जाए काम। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो हमने डिटेल कई कई घंटे इसके ऊपर ना हम डिस्कशन करते थे। फिर जाके हमारा ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब वो शकील जो है, आज कल ना वो बंदा उधर कोयटा में पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर का ना हेड है। वो बड़ा बाबा था थोड़ा सा ना, बड़ी उम्र का बंदा था, कराची उधर से आया था, कोयटा से पीएचडी करने इधर। ठीक है, अब पीएचडी हो गई और उसकी, वो वहां पर ये काम कर रहा है। अच्छा, और अगर किसी ने करना हो ना जाफरान पे काम, वो बंदा काम कर रहा है, अगर आपको कोयटा। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ। अच्छा चलें, मैं बस वो आपको थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूँ, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर मैं आपको इसका ना एक जो नोट्स है, आप ना फिर किसी और रूम में चल जाइए, तो मैंने एमएस